So, good morning students. Today we are going to start our next topic, that is extraction of iron. So, iron is extracted from its different ores. Different ores of iron are hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, limonite Fe2O3 that access to hydrated form है, iron pyrite FeS2 and siderite FeCO3. So all these are different ores of iron. Out of these ores, iron is principally mainly extracted from hematite, that is Fe2O3. Magnetite is magnetic ore of iron, while iron exists in most abundance in the form of FeS2, that is iron pyrite. Iron pyrite is the ore of iron which is present in abundance, but iron is principally extracted from hematite. So, first step during the extraction of iron is crushing or grinding of the ore. We have already studied this step. What is the purpose of using this step? We have to convert the ore into powdered form. इस step में main purpose क्या है? Crushing और grinding of the ore. Process को हमने क्या बोला था? Pulverization of ore. And what is the purpose of using this step? First step, we have to convert the larger ore particles into smaller ones. ठीक है, तो जो heavier ore particles है उनको lighter ones में convert किया जाता है by using this step, that is crushing or grinding of the ore. Next step is concentration of ore. So during the concentration of this ore hematite, what we will use a method that is gravity separation और levitation method, जिसमें हम hydraulic classifier use करते हैं और उससे जो है विली मिल्स जो है वो यूज करते हैं, विलफ्लाई मिल्स जो है वो यूज करते हैं और उससे जो है जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं या क्ले पार्टिकल्स, जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जो गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है ओर में, उनको जो है वो रिमूव करते हैं. सो ड्यूरिंग द concentration of ore, gravity separation method is used for the concentration of hematite, and the powdered ore is washed with water to remove the clay or sand particles. If the clay or sand particles are present in the ore, because we have extracted the ore from the earth crust, so definitely clay or sand particles may be there. So for the concentration of this ore, we will use strong water jet, and by using strong water jet, as the ore particles are heavier in nature while impurities will be lighter in nature, and clay or sand particles can be removed easily by using gravity separation method. Next we will do the third step, that is obtaining the crude metal. So how we can obtain the crude metal? So next is calcination of the ore, and calcination is done if some other impurities are there. See, if this ore is already present in its oxide form, but if certain impurities are there, it may be phosphorus, it may be sulfur, so the ore will undergo calcination. The ore particles are heated in the absence of air or in the presence of reduced amount of air, that is oxygen. So in the limited supply of oxygen, if sulfur is there, it will form sulfur oxide, or if other metals are there, then definitely they will form their oxides. So students, next is the reaction which are taking place in the blast furnace. So a blast furnace is used for the reduction of the oxide. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज ऑब्टेनिंग द क्रूड मेटल. सो क्रूड मेटल ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है, दैट इज स्मेल्टिंग ऑफ ओर, एंड स्मेल्टिंग ऑफ दिस ओर विल टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस. दिस ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, ये ब्रिक्स की बनी होती है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये ब्रिक्स प्रेजेंट है, एंड दीज आर ब्रिक्स. एंड इन दिस ब्लास्ट फर्नेस यू कैन ऑब्जर्व there is a tapping hole at the bottom which is for the molten iron. अगर molten form में iron यहाँ पे आ रहा है तो इस tapping hole से जो obtain किया जा सकता है, और अगर उसे lighter particles जैसे slag अगर present है तो slag जो है वो इस molten iron के ऊपर present होगा, being lighter in nature. ठीक है, slag हमने already पढ़ा भी था. slag क्या होता है? fusible mixture होता है. यहाँ पे ये ट्वेयर्स है और यहाँ से जो हॉट एयर ब्लास्ट है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. अब इस ब्लास्ट फर्नेस में आप डिफरेंट जोन्स जो है वो देख सकते हैं. यहाँ से हम टॉप से जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओर, जो भी आयरन का ओर था हेमेटाइट,
along with कैल्शियम कार्बोनेट क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, फ्लक्स एक्ट कर रहा है। कल भी स्टडी किया था हमने व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लक्स। ये जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, अनवांटेड इंप्योरिटीज अगर फिर भी रह जाती हैं, ठीक है, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज अगर रह जाते हैं तो उनको ये किसमें कन्वर्ट करता है, इट विल कन्वर्ट दोज इंप्योरिटीज इनटू अ फ्यूजिबल मिक्सचर। और साथ में हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जो है यहां से इंट्रोड्यूस करें तो कार्बन क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, सी। सो कंबशन विल टेक प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है 2170 केल्विन, ठीक है, 2170 केल्विन, एंड दिस जोन इज वेरी हॉट जोन एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंबशन जोन, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर है ब्लास्ट फर्नेस में इस जोन में, और इस जोन को और क्या बोलते हैं, कंबशन जोन। तो यहाँ पे कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है, जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रखा है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रखा है यहाँ पे, कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन द टेम्परेचर इज 2170 केल्विन एंड इट इज अंडरगोइंग कंबशन, कार्बन इज अंडरगोइंग कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है। एंड दिस रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे जो डेल्टा एच है दैट इज -393 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी जो वो यहाँ पे क्या होगी, लिबरेट होगी। डेल्टा एच जो है दैट इज -393 किलोजूल। सो नेक्स्ट जो जोन है हमारे पास, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां से ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे थे, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ फ्यूज हो रही है, कार्बन के साथ फ्यूज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्यूजिंग विद व्हाट, कार्बन, एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ फ्यूज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो फॉर्म हो रही है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 163 किलोजूल, ठीक है। तो यहाँ पे तो रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक था, और यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। कौन सी जोन में, फ्यूजन जोन में। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे तो टेम्परेचर था 2170 केल्विन और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 1570 केल्विन, ठीक है। तो 1570 केल्विन पे ये जो जोन है, दिस जोन इज नोन एज व्हाट, फ्यूजन जोन। और फ्यूजन जोन का टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन के साथ, द रिएक्शन इज व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे हीट जब क्या होगी, कंज्यूम होगी। इससे ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी, गैसेस की टेंडेंसी क्या होती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। दे विल ट्राई टू एस्केप। सो अब यहाँ पे ऊपर जो है, अगर कोई इम्प्योरिटीज रह गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो भी और पार्टिकल्स है इनको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। सो उसमें सिलिका SiO2 जो है वो कॉमन इम्प्योरिटी जो है वो रहती है, ठीक है। अगर फिर भी अगर रिमूव नहीं हो तो SiO2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये फ्लक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। SiO2 किस तरह की इंप्योरिटी हुई, एसिडिक इंप्योरिटी है, और यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा दैट इज बेसिक इन नेचर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आप डायरेक्टली रिएक्शन शो कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जैसे रिएक्शन हो रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है। कैल्शियम सिलिकेट जो फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज स्लैग। ये जो कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो CaSiO3 इट इज नोन एज स्लैग, दिस इज स्लैग। और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। एट 1270 केल्विन दिस जोन इज नोन एज स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है। ये तीनों जोन्स क्लियर है, एक कंबशन जोन होगी, फ्यूजन जोन होगी, स्लैग फॉर्मेशन जोन होगी। और जो नेक्स्ट जो है, अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो ऊपर आ रही है यहाँ पे, तो 870 केल्विन पे जो है वो रिडक्शन होगी एंड दैट जोन इज नोन एज रिडक्शन जोन। That zone is known as reduction zone and the reaction which are taking place in reduction zone
we will discuss separately. ठीक है, so in the reduction zone carbon monoxide will act as a reducing agent. कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो एक्ट कर सकता है यहाँ पे reducing agent, और जो भी आयरन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं उनको क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, क्रूड आयरन में जो वो कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो लेट्स स्टडी द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द रिडक्शन जोन. So the reaction which are taking place during the smelting of ore in the reduction zone, this reduction zone will range from 500 to 870 Kelvin. This is the temperature range in the reduction zone. See, reducing agent तो हमने क्या यूज किया था, कार्बन यूज किया था, बट जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो रहा था, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा था. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हुआ, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा था. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो फॉर्म कर रहा था. तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इस टेम्परेचर पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो हमारे पास टॉपमोस्ट पोर्शन है वहां पे टेम्परेचर कम है, गैसेज जो वो क्या कर रही थी, एस्केप कर रही थी, तो ऊपर से हम और ऐड कर रहे थे. सो अगर FeO है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो आयरन बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फॉर्म हो जाएगा. अगर Fe2O3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 फॉर्म कर रहे हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो लिबरेट होगी. इक्वेशन को जो है वो आप बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करके जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आ रही है, दैट इज, so you can balance the iron, 3 to the 6 iron, 3 to the 6 iron and oxygen, 3 3 is 9 and 1 10, 4 to the 8 and 2 10, एक कार्बन है. ठीक है, then Fe3O4 plus 4CO, it is forming 3Fe plus 4CO2. Fe3O4 जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, ये फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा. सिमिलरली आगे है आपके पास जैसे Fe2O3 प्लस CO, FeO फॉर्म कर रहा है, ये FeO फॉर्म कर रहा है along with formation of CO2. तो इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो. ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2FeO और साथ में क्या आ जाएगा, CO2. सो आयरन आपके पास 2 है, यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स है. ऑक्सीजन का नंबर देख सकते हो 3 and 1 4, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है. ठीक है, कार्बन 1. ये भी आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी. FeO प्लस C गिव राइज टू Fe प्लस CO. ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर ये FeO बॉटम में जा रहा है तो इस तरह से रिडक्शन होगी, अगर टॉप में ही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. ठीक है, सो ऑल these are the reactions which are taking place in the reduction zone of the iron. Now the most important step is, this was the smelting of ore. और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे पास आयरन, ये जो मोल्टन फॉर्म है आयरन जो वो ऑब्टेन हो रहा है, दिस आयरन इज नोन एज पिग आयरन. ठीक है, इस आयरन को क्या बोलते हैं, पिग आयरन. एंड दिस पिग आयरन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसको जो है डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, कास्ट किया जा सकता है, कास्ट आयरन जो है वो फॉर्म किया जा सकता है. द आयरन thus obtained is known as pig iron or cast iron, and it contains different impurities. 2 to 2.5% impurities are there, carbon is there. So what we have to do, if we are able to remove the impurities, अगर हम उन इम्प्योरिटीज को, कार्बन के अलावा भी उसमें जो है और इम्प्योरिटीज होती हैं, सल्फर होता है, सिलिकॉन हो सकता है, डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो हो सकती हैं उसमें. ठीक है, सो if all those impurities are removed, then it will change into wrought iron, and wrought iron is also known as the purest form of the iron. जो pig iron है, that is not the pure form of the iron. The wrought iron is the purest form of the iron. So if carbon is there, then Fe2O3 it is treated with carbon to form Fe plus 3CO. If silicon is there, then silicon can be treated with Fe2O3. It can be heated with this and to form SiO2 plus 4Fe. ये जो iron obtained हो रहा है, this iron will be what? Wrought iron. If sulfur is there as in the form of still remaining in the molten iron in the form of impurities, then it is further treated with Fe2O3 to form sulfur dioxide and 4Fe. So in this way the iron thus obtained will be known as what? Wrought iron. ठीक है, and this is the most purest form of iron. ठीक है, ये सबसे ज्यादा purest form है iron की. So in this way wrought iron can be obtained.
So all these steps were for the extraction of iron. So next is extraction of copper. So copper can be extracted from its ores. First is copper glance, Cu2s, copper pyrite, CuFeS2, malachite, CuOH twice, CuCO3, and cuprite, that is Cu2O, oxide of copper, and azurite, that is 2CuCO3, CuOH twice. So all these are the ores of copper. Out of these ores, cuprite can be easily used for the extraction of copper, since it is already present in which form? Oxide form. Or another ore of copper which can be used for the extraction of copper, that is copper pyrite, CuFeS2. ठीक है? So principally और preferentially कॉपर पायराइट से या फिर क्यूपराइट से जो है कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. बिसाइड दिस एक और जो है कॉपर ग्लैंस Cu2s, ये भी जो है वो यूज किया जा सकता है जनरली फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. ठीक है. सो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए जो है कॉपर ग्लास इजिली यूज किया जा सकता है, कॉपर पायराइट यूज किया जा सकता है, या फिर क्यूपराइट Cu2O जो है वो यूज किया जा सकता है. ठीक है. सो हियर वी शैल यूज दिस cuprite or copper pyrite for the extraction of copper. ठीक है. स्टूडेंट्स सी, अगर तो हम यूज कर रहे हैं जैसे कॉपर ग्लैंस मैंने आपको बताया, अगर हम यूज कर रहे हैं Cu2s फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो Cu2s की क्या कैरी आउट कर सकते हैं हम? रोस्टिंग कैरी आउट कर सकते हैं. बाकी प्रोसेसेस वैसे ही रहेंगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कन्वर्ट पल्वराइजेशन वाला वही स्टेप रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर वाला. सल्फाइड ओर्स के केस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सी प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. ठीक है. पहला स्टेप हो गया, कौन सा आ जाएगा हमारे पास? कन्वर्शन ऑफ द ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म. ठीक है. दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ ओर. सेकंड स्टेप में ये जो ओर एंटर करेगा, अगर हम सल्फाइड ओर लेके चल रहे हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैरी आउट इट्स व्हाट concentration. So concentration of ore can be done, in this case it can be done by using froth flotation method. कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज किया जा सकता है. सो ये जो सल्फाइड ओर है ये फ्रोथ फॉर्म करेगा, और फ्रोथ फॉर्मेशन से जो है इसको क्या किया जा सकता है? कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है. अब जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में एंटर करेगा. जैसे ही थर्ड स्टेप में अब हमने क्या कैरी आउट करनी है? सल्फाइड ओर है, देन सल्फाइड ओर विल अंडरगो रोस्टिंग. ठीक है. हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज रोस्टिंग ऑफ दिस सल्फाइड ओर. Cu2s ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ट्रीट किया, देन इट विल फॉर्म Cu2O cupric ऑक्साइड along with formation of सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. क्या फॉर्म कर रहा है ये? Cu2O along with formation of sulfur dioxide. आप इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर सकते हो. So here the balanced equation will be this 2 Cu2s plus 3O2 give rise to 2 Cu2O plus SO2. You can see 2 to the 4 copper, 2 to the 4 copper, 2 sulfur, 2 sulfur, and oxygen 3 to the 6, 2 and 2 to the 4, 6 oxygen. ठीक है. सो ये जो भी Cu2O आ रहा है, आगे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आइदर कार्बन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ट्रीट कर दिया Cu2O को कार्बन के साथ ट्रीट किया, इट विल फॉर्म 2 कॉपर प्लस CO. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फॉर्म कर देगा. ये जो कॉपर हमारे पास ऑब्टेन होगा, दिस विल बी क्रूड कॉपर. ये क्रूड कॉपर ऑब्टेन होगा. और जो रिएक्शन सेल्फ, इसकी रिडक्शन भी हो सकती है, जैसे Cu2O है, ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं इसको. Cu2s के साथ अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, देन इट विल फॉर्म Cu along with formation of SO2. ठीक है. तो इस तरह से आप जो इसको ट्रीट कर सकते हो, एंड इट विल फॉर्म 6Cu plus SO2, 2 to the 4 into 6 SO2. ठीक है. So students, next is extraction of copper. So copper can be extracted from copper pyrite. This is copper pyrite CuFeS2. ऑक्सीजन के साथ जैसे इसको ट्रीट किया तो कॉपर सल्फाइड बन रहा है, आयरन सल्फाइड बन रहा है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वो लिबरेट हो रही है. ठीक है.
एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रेफरेंशियली रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर रहे हैं, FeO आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। उसके बाद कॉपर सल्फाइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है देन इट विल फॉर्म Cu2O along with formation of SO2। अब जो FeO हमारे पास बना, आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, ये फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके इसका नेचर कैसा होगा आयरन ऑक्साइड का, इट विल बी बेसिक इन नेचर। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एसिडिक फ्लक्स ऐड कर दिया और क्या फॉर्म कर रहा है, FeSiO3, दिस इज फॉर्मिंग फ्यूजिबल मिक्सचर। ओके, एंड द मिक्सचर ऑफ दिस कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज नोन एज कॉपर मेटी। This mixture is known as copper metal. So directions should be clear to you। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। आयरन सल्फाइड क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, तो प्रेफरेंशियली क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने फ्लक्स ऐड कर दिया, तो जो भी आयरन ऑक्साइड है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, FeSiO3। ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे स्लैग फॉर्म हुआ, फ्यूजिबल मिक्सचर जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बाकी जो Cu2S है, कॉपर पायरेट, जो यहाँ पे Cu2S है, कॉपर ग्लैंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो वो फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट जो है वी विल स्टडी द रिएक्शंस व्हिच, नेक्स्ट वी विल स्टडी ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया। अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे जो फर्नेस में कौन सा रिएक्शन जो वो होता है, किस तरह से हम इसकी जो रिडक्शन कैरी आउट करेंगे। इसके बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रूड कॉपर, देयर आफ्टर वी विल कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ क्रूड कॉपर। नेक्स्ट द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द फर्नेस। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मेटी। So copper metal is mixture of iron sulfide and copper sulfide, Cu2S. So first of all, iron sulfide will react with oxygen, it will form iron oxide plus 2SO2, sulfur dioxide गैस जो वो क्या कर जाएगी, escape कर जाएगी। उसके बाद आयरन ऑक्साइड हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है फ्लक्स SiO2, फ्लक्स SiO2 will act as flux और ये FeO के साथ कंबाइन करके जो है वो क्या फॉर्म करेगा, FeSiO3 दैट इज स्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे FeSiO3 फॉर्म हो रहा है, दैट इज फेरोसिलिकेट एंड इट इज नोन एज स्लैग। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो हमारे पास Cu2S है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है Cu2O प्लस SO2 फॉर्म करेगा। बैलेंस कर सकते हो इस इक्वेशन को, 2SO2 आ जाएगा। ठीक है, और Cu2S will react with Cu2O, further it will react with Cu2O to form molten copper। ये जो कॉपर ऑब्टेन हो रहा है this will be known as molten copper along with formation of a sulfur dioxide। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी फर्नेस की बात करें तो ये जो फर्नेस है, जैसे आयरन के केस में ब्रिक्स की बनी होती थी, वैसे कॉपर के केस में ये स्टील की बनी होती है। यहाँ से टोयर्स, यहाँ से एयर जो है वो हॉट एयर ब्लास्ट जो वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मोल्टन कॉपर मेटी जो वो प्रेजेंट है। सो जैसे हॉट एयर ब्लास्ट जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो कॉपर जो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये सारे के सारे रिएक्शन हो रहे हैं। आयरन ऑक्साइड फेरोसिलिकेट फ्यूजिबल मिक्सचर जो फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो वो क्या कर रही है, यहाँ पे एस्केप कर रही है। अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो आपके पास ये मोल्टन कॉपर आया, इसके साथ साथ में क्या लिबरेट हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट हो रही है। सो दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस सम ब्लिस्टर्स इन द कॉपर। ठीक है, जो कॉपर है उसमें ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस टाइप ऑफ कॉपर इज आल्सो नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। तो यहाँ पे जो मोल्टन कॉपर ऑब्टेन होगा, ठीक है, उसके बाद ये जो सॉलिडिफाई होगा तो उसमें जो है कुछ ब्लिस्टर्स प्रेजेंट होंगे और वो ब्लिस्टर्स किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट हुई, इसकी वजह से जो है वो ब्लिस्टर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज वाई द कॉपर इज नोन एज अ ब्लिस्टर कॉपर। इसी वजह से जो कॉपर है उसको और क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉपर ऑब्टेन हुआ दैट विल बी द क्रूड कॉपर। ठीक है, अब उस क्रूड कॉपर से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, अब प्योर कॉपर जो वो ऑब्टेन करेंगे। सो फोर्थ जो स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ अ क्रूड कॉपर। एंड रिफाइनिंग में भी कौन सी रिफाइनिंग जो हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो क्रूड कॉपर इज रिफाइंड बाय द मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
electrolytic refining. So for the electrolytic refining we have a electrolytic tank in which we have two electrodes. One electrode will be made up of pure copper and another will be made up of impure copper. ठीक है, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया, दिस इज मेड अप ऑफ impure copper. ये है impure copper का इलेक्ट्रोड and this electrode is made up of pure copper metal and these two electrodes are dipped in copper sulfate solution. यहाँ पे जो सोल्यूशन है दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो यूज कर रखा है हमने एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड. ये जो इलेक्ट्रोड है दिस इज नोन एज एनोड and the electrode which is connected with the negative terminal, this is known as cathode. Now electrolysis of this solution will take place. जो भी यहाँ पे solution है उसकी electrolysis होगी and the reactions which are taking place during the electrolysis are at anode. We know very well at anode oxidation will take place. कौन सी process होगी? Oxidation. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. मींस कॉपर सॉलिड विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो कॉपर सॉलिड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. ठीक है, सॉलिड एक्वस में जा रहा है. मीन्स ये इलेक्ट्रोड जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये डिप्लीट होना स्टार्ट हो जा रहा है और यहाँ से जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है? वो सोल्यूशन में जा रहा है. ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट जो दूसरा इलेक्ट्रोड है एट एनोड, एनोड वाला रिएक्शन तो हो गया. दूसरा जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड. अब कैथोड में कौन सी प्रोसेस होगी? रिडक्शन. एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो at cathode copper to positive aqueous, it will gain 2 electrons to form copper solid. ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर सॉलिड जो फॉर्म हो रहा है, ये जो कॉपर सॉलिड फॉर्म हुआ ये इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से सीधी सी बात है, एनोड जो वो डिप्लीट हो रहा है, यहां से कॉपर जो वो सोल्यूशन में जा रहा है और सोल्यूशन से कॉपर जो वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, सो इन दिस वे यहाँ पे जो ये जो कॉपर सॉलिड कॉपर जो ऑब्टेन होगा दिस विल बी द प्योर कॉपर. सो कॉपर कैन बी रिफाइंड और क्रूड कॉपर कैन बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस होगी एंड यू कैन सी द अपरेटस असेंबली. अपरेटस असेंबली जब आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रोड इम्प्योर कॉपर का था एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड जो था वो प्योर कॉपर का था. 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज किया जा सकता है. ये इलेक्ट्रोड जब वो डिप्लीट होना स्टार्ट होगा, डिसॉल्व हो जाएगा. दूसरा इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. कॉपर सॉलिड विल गिव राइज टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस. रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा है? कॉपर सॉलिड जो है वो फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इन दिस वे कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा. And if some impurities are there, then impurities will settle down here at the bottom, forming anode mud. अगर कुछ impurities है, जैसे क्रूड कॉपर में impurities present है, so those impurities will settle down here, forming anode mud. ठीक है, तो जो impurities हैं वो यहाँ पे settle down हो जाएंगे. They will settle down here, while copper will deposit on a cathode. Cathode के ऊपर जो कॉपर जो वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा. So this is the process of electrolytic refining of copper. ठीक है, so कॉपर जो है वो इस तरीके से रिफाइन किया जा सकता है. क्रूड कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से
रिफाइन किया जा सकता है, प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है।